Yes, sir. Good afternoon to all. In last session, we had discussed the nomenclature for assigning the name of pair of enantiomer, whether it is R form or L form, based on the arrangement of the atom with respect to each other or based on a structure. है ना? तो for that we follow the sequence rule or CIP rule. है ना? कौन से rule follow किया था हमने? CIP rule follow किया. That is the can involved pre-lock system. According to that, the priority first of all identify with the compound is chiral. Then draw the Fisher projection formula by intersection of the line and place the atom. Then assign the priority to the atom. The priority is based on atomic number. Higher the atomic number, higher will be the priority. Then if the isotope attached, then priority is based on the atomic mass number. If the similar atom attach to the chiral carbon atom, then priority goes to the next atom until we find the differences. And the last rule says that if the multiple bonded atom attached to the chiral center, then we have to make some changes. And I means if the carbon-carbon double bond, we have to represent by the key carbon atom attached 2 times. And so, by making these changes, we can easily assign the priority and directly assign the type of a isomer, whether it is dextro, that is whether it rotates the plane polarized light in a clockwise direction or anti-clockwise direction. So until we discuss the compound that containing only the one chiral center. है Now just take the example of the 2,3-dichloropentane. First of all, tell me whether this compound is optically active or not. Optically active. or not? Yes, sir, active. Apply both the rule. First rule, that is either the compound should containing the chiral carbon atom, है ना? तो chiral carbon atom है यहाँ पर. Yes, sir. है ना? Chiral. How many chiral carbon atom here? Sir, 1. Sir, 2. Two, sir. 2. 2 chiral carbon है ना? तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है ना? So this compound containing the 2 chiral carbon atom, and second rule says that though it containing the chiral carbon atom, but compound should be the no any sort of symmetry, means compound should be the dissymmetric, means compound should not have any sort of symmetry. So if we just bisect this compound through any direction, so we get the 2 half, 1 half and second half. So they are not mirror images. Either you cut in this way, either you cut in this way, either you cut in this way or this way. आपने कैसा भी इसको cut किया ना, तो we are not getting the 2 half, they are the mirror images, है ना? तो from this it is clear that this compound is optically Active. active. Now the CIP or CIP rule or specification for the R and S nomenclature for the optically active compound says that first of all draw the Fisher projection formula for the 2,5-dichloropentane, the intersection of the line. So यहाँ पर when there is a compound that containing the 2 chiral carbon atom, तो उसमें क्या करना है, सब में पहले अपने vertical line draw करना है and draw the horizontal line, और जो horizontal line जहाँ पे intersect कर रही है vertical line को, that represent the chiral center. तो है ना, here the 2 chiral center, that's why we draw the 2 horizontal line, means that containing the 2 chiral carbon atom. Here is first one and this one is the second chiral carbon atom. Now place the whatever the different atom attached to the chiral carbon atom, है ना? तो यहाँ पर आप है ना, based on your priority or based on your preference, you may attach any of the group to here, here, here,
here, here, or here, है ना? It is not compulsion that hydrogen atom should be on the left side, or chlorine from that side, or methyl from this side, or ethyl from this side. Ethyl may be from this side, hydrogen from maybe this side, and depending on your preference, है ना? But just you should take the precaution while assigning the priority and name to the corresponding optical isomers, है ना? तो ये हो गया हमको। और दूसरी बात ये है, डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ द कायरल सेंटर, हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल विद द 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन? Sir, 4. कितने हैं? 4. 4. यस, है ना? तो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स? 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल विद 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। बट हियर जस्ट द क्वेश्चन दैट असाइन द नेम फॉर दिस कंपाउंड, है ना? तो हम ज्यादा बॉदर नहीं होंगे यहाँ पर, जस्ट वी आर असाइनिंग द नेम फॉर दिस कंपाउंड, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करेंगे, हम नंबर दे देंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are assigning the सेकंड कार्बन एटम को हम असाइन करेंगे। यहाँ पे है मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पर है CCl C2H5 और हाइड्रोजन है। तो विच ग्रुप हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, एनीवन? Cl. Chlorine. Sir, Cl Cl. है। Chlorine group having the first priority. Second priority? Sir, ethyl. Yes. Third priority? Methyl. And fourth having the hydrogen. Hydrogen. तो second position पे कौन सा ग्रुप है? देखो, if you move the from higher priority to the lower priority, तो डायरेक्शन कैसा है इसका? Anti-clockwise. Clockwise. Clockwise. क्लॉकवाइज है ना? Sorry, अरे भाई, तो इसका क्या नाम रहेगा फिर? यहाँ पे Sorry. सेकंड पोजीशन पे आर है या एस है? Sir, R S. sir. और हाँ? एंटी हो गया। Sir, यस। sir, S रहेगा। सर S होगा S. Sir, एस होगा, S रहेगा, बराबर है। S. हाँ, what is the reason behind that? Because on fourth, sir, that which is released, it is on horizontal line. Yes, 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 yes. When the lower priority group is not away from the observer at that time, assign exactly opposite to that of the direction of arrow, है ना? Assign the name exactly opposite to that of the arrow. तो क्या है यहाँ पे, when we move from higher priority to the lower priority, so we found that the arrow moving in a clockwise direction. But here the lower priority group, that is the fourth one group on a horizontal line. That's why we are assigning exactly opposite to that of the direction of arrow. Direction of arrow says the clockwise, but we assign the S. Now we are assigning on a third position. Third position, ये third position को देखो, third position को भी हम यहाँ पे से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इसके इथिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पर CHCl CH3. Now मानसी काकड़े, रोल नंबर 105 है। मानसी काकड़े, तेजस सावंत, रोल नंबर 59। तेजस सावंत, रोल नंबर 95 फरीद वासिफ। Yes, sir. हाँ बोलो इसको, how will you assign the priority to this compound? बोलो।
क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, करेक्ट। सेकंड प्रायोरिटी किसको रहेंगे? एथिल ग्रुप। इसको या इसको? एथिल ग्रुप को रहेंगे। ये नीचे वाले को? हाँ यस करेक्ट है इनका, फरीद का करेक्ट है क्या? यस एनीवन? नो रॉन्ग सकता हूँ सर, ऊपर वाले को रहेंगे। हाँ, ऊपर वाले को रहेंगे, बराबर है। क्यों रहेंगे बोलो फरीद? सर वो ये देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये कार्बन आइटम ये है और ये कार्बन आइटम को इधर ड्रॉ कर रहे हैं भैया। ओके देखो द आइटम दैट डायरेक्टली अटैच्ड टू द chiral carbon atom is same, then priority goes to the next atom. So here one carbon atom, one hydrogen atom and one chlorine group क्लोरीन attached to this carbon atom, है ना? और ये कार्बन एटम को क्या है, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो फर्स्ट कॉलम में तो सिमिलैरिटी, बट सेकंड कॉलम में हमको वी गेट द डिफरेंसेस। हियर इट गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दिस सेकंड, है ना? तो इसलिए इसको सेकंड, दिस गेटिंग द थर्ड प्रायोरिटी एंड दिस गेटिंग द फोर्थ प्रायोरिटी। तो नाउ मूव द एरो फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू द लोअर प्रायोरिटी। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई ऑन थर्ड पोजीशन कौन सा रहेगा फिर? हाँ बोलो। यस बराबर है। ये इनका क्या नाम आपका? Sir, it is आर आर R configuration. अभी एस किसने बोला? मुझे बोलेंगे नाम क्या बोले आपका? कोई गर्ल ने बोला, बोलो। से माधुरी। हाँ बोलो माधुरी। अब ये समझ में आ गया बेटा आपके? एक्चुअली क्या है यहाँ पे, व्हेन अ लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन अ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये समझ लो। ये पॉइंट है ना, आप जो लोकल बुक रेफर करेंगे ना उसमें नहीं दिया है ये आपको समझना पड़ेगा। व्हेन द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब है ना लोअर प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा, तो एट दैट टाइम असाइन द नेम फॉर that particular optical isomer exactly opposite to that of the direction of arrow। यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ एरो क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, और पैरेलली क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स व्हाई। और ये एस है पर एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एरो, तो इसलिए क्या यहाँ पे आ रहा है, आर फॉर्म आ रहा है। आ गया समझ में ये आपके? हाँ यस माधुरी, ये देखो ये पॉइंट है ना, ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ ये देखो ये है, ये देखो, इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, नेमिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो, naming is opposite to the direction of arrow। This important point you should note that, है ना? Because the rule says that view the molecule in a such a way that the lowest priority group should be away from the observer, but whenever the group on a horizontal line, at that time group just coming towards the observer, है ना, means that hugging to the observer। तो ये correct way नहीं है, इसीलिए उसमें हम तो इधर you should make some changes or just assign exactly opposite to that of the direction of arrow। तो better way just assign exactly opposite to that direction of arrow, क्योंकि changes में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। मैंने आपको बताया भी था क्या होता है exactly इसमें, तो है ना? तो देख लो यहाँ पर बराबर यही आया आपका, हमारा यही आया था ना? यस सर। हाँ, तो समझ में आ गया आपको? यस सर। तो this 2,3 dichloropentane having the how many optical isomers possible with this compound? 4 फोर। फोर। तो ये देखो ये पेयर मिलेंगे हमको, एस एस, एस आर, आर Sir, एस RS. और आर आर। तो ये देखो ये है ना, just write down the question, draw the SS, SR, RS and RR form of a 2,3 dichloropentane, or that
लिखा सभी ने क्वेश्चन? Draw the SS, SR, RS and RR form of a 2,3-dichloropentane. Just the next slide that appear on your screen. Anyone just tell me the name, IUPAC name of this particular compound? क्या है इसका नाम? IUPAC name क्या है? Anyone? 3-bromo-2-hydroxy butanoic acid. Butanoic acid. Just assign the name, stereo isomeric name for this compound for the second and third position. For the second and third position. Let's try this molecule. सर हाँ बोलो. सर इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है? मतलब COOH को देनी है, मतलब एसिडिक ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है या फिर वो जो नीचे वाला ग्रुप है उसको? ये देखो, one thing you should clearly understand that the priority is based on an atomic number irrespective of the reactivity. We are not concerned with the reactivity. Here we concern with the atomic weight, atomic number, sorry. जिसका जितना ज्यादा atomic number रहेगा उसका higher priority रहेगा. तो just assign the priority based on a atomic number. When we assign the priority to the second carbon atom, at that time the third carbon atom consider as a group. उस टाइम में आप है ना इसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल के कंसीडर मत करो. यहाँ पर इसको क्या कंसीडर करना है? यहाँ पे ग्रुप कंसीडर करना है इसको. समझ में आ रहा है आपको? और जब आप थर्ड पोजीशन पे असाइन करेंगे तो एट दैट टाइम दिस होल सब्स्टिट्यूशन कंसीडर एज अ वन ग्रुप, है ना. तो आपको है ना इजी जाएगा वो. जैसा देखो यहाँ पर वो किया है उन्होंने, है ना. देखो यहाँ पर जब इसको असाइन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसको ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसको असाइन कर रहे हैं. जब इसको यहाँ पर असाइन कर रहे हैं तो here it is considered as a one group. किसका आ गया है तो बोलो, उसका नाम बोलो और फिर उसका आंसर बोलो मुझे. यस, रोल नंबर 51. रोल नंबर 51. यस सर. हाँ बोलो, इसका नाम लिखा किया आपने? नहीं अभी. हाँ चलो आप ट्राई करो अभी. हाँ आप बोलो मुझे, क्या नाम आपका? निकिता. हाँ निकिता. ये देखो हम असाइन करें सेकंड कार्बन एटम को असाइन करें. सेकंड कार्बन एटम को दिख रहा है आपको? ये कर्सर दिख रहा है मेरा? यस सर. हाँ अभी देखो इसको, ये कितने ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन एटम को? हाउ मेनी ग्रुप्स अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम? 4 करेक्ट. हाँ उसमें से देखो ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है. ये अब इतना समझ में आ गया ये आपको? यस. हाँ. नाउ असाइन द प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पे प्रायोरिटी है. तो किसको प्रायोरिटी रहेंगी पहली बोलो? OH. OH करेक्ट. OH हैविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी.
है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है compared to that of oxygen. Here also the carbon atom, that's why the oxygen atom having the higher priority. Now the second priority किसको रहेंगी बोलो? सी बी, वो नीचे वाला ग्रुप। ये देखो अभी क्या है मालूम है क्या, carbon is the same atom attached to the chiral carbon atom, attached to the same chiral carbon atom, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है आपको, that's why we are giving the priority to the next atom, है ना। तो यहाँ पर देखो जब हम इसको कर लेंगे, कार्बन एटम, ये एक कार्बन एटम और ये एक कार्बन एटम, द सेम एटम अटैच्ड, की द की एटम दैट अटैच्ड टू द chiral carbon atom is same, that's why we are going to the next atom. तो यहाँ पे देखो here the carbon atom attached to the 3 oxygen atom, or here it attached to the 1 hydrogen, 1 bromine, and 1 carbon group, है ना। सर 3 ऑक्सीजन नहीं, 1 हाइड्रोजन आएगा ना? किधर, यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में? यस सर। नहीं ना, देखो ना इसमें क्या है मालूम है क्या, मल्टीपल बॉन्ड है ना इसमें, देखो ये देखो हियर दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वी हैव टू मेक सम चेंजेस, मींस द कार्बन इज 2 टाइम बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दिस वन इज द सेकंड टाइम, 2 टाइम्स, और ये उसका OH का OH है यहाँ पर, है ना। यस सर। आगे समझ में? हाँ अभी देखो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन और यहाँ पे कार्बन है, तो विच गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, अब इसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगा यहाँ पे? ब्रोमीन का कितना एटॉमिक नंबर का, ब्रोमीन का? यस बोलो, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 35। हाँ, यस एनीवन? सर 35 35 है ना, 35 35 और प्लस कार्बन का, तो बोले तो देखो यहाँ पर है ना, इसका सबका भी एडिशन किया हमने, ये ऑक्सीजन का भी, तो भी उतना नहीं हो रहा है, इसका 24 ही हो रहा है, यहाँ पे इसका अकेले का ही 35 जा रहा है, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेंगी यहाँ पर? ब्रोमीन को। सेकंड, ये समझ में आ गया आपको, है ना, क्योंकि Yes, sir. ब्रोमीन हैविंग हायर यस सर। एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई गेटिंग द सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेंगे? ऑब्वियसली दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड फोर्थ प्रायोरिटी टू द दिस वन, है ना। नाउ मूव द कर्सर फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू द लोअर प्रायोरिटी, नाउ मूव द कर्सर फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू द lower priority, so here we moving in this way direction, the direction of arrow is clockwise. That's why, or but the lower priority group on a horizontal line, that's why we assigning the name exactly opposite to the direction of arrow. So direction of arrow says the R, but we should write as a, क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर? Yes. Correct, है ना। नाउ वी असाइन द थर्ड प्रायोरिटी। अभी थर्ड प्रायोरिटी के लिए कौन बोलेगा मुझे? रोल नंबर 99 है प्रेजेंट? रोल नंबर 99 है, नहीं है प्रेजेंट रोल नंबर? बस दूसरा कोई बोलेगा इंटरेस्टेड है? सर मैं सर हाँ बोलो। सर ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी, देन उसके हाँ। ऊपर वाला ग्रुप सेकंड, देन मिथाइल ग्रुप इज थर्ड एंड हाइड्रोजन इज फोर्थ। यस, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका आर होगा, तो उसका उल्टा लेंगे हम, तो एस होगा। करेक्ट, है ना। तो दोनों भी क्या है, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन हैविंग द एस फॉर्म, है ना, मींस द कंपाउंड रोटेट द
एंटी क्लॉकवाइज, है ना, टू द प्लेन सर पोलराइज लाइट। बोलो। सर आपने ये एटॉमिक नंबर की प्लस क्यों किया है यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड OOOH में? ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रोमीन दिख रहा है और यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे तीनों भी ऑक्सीजन दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। हाँ सर। समझ में आ रहा है ये आपको? तो सर प्लस ही करेंगे क्या फिर सबका? कलेक्टिवली देखना है, कलेक्टिवली नहीं देखना है वहां पर, एक्चुअली ब्रोमीन ही है उसका, पर इफ यू फाइंड सम डिफिकल्टी एट दैट टाइम यू मे कलेक्टिवली जस्ट ऐड ऑल द एटॉमिक नंबर एंड असाइन द प्रायोरिटी उस टाइम में, क्योंकि वो ही गिरता है, वो कैसा भी किया आपने तो वो ही मिलता है आपको। समझ में आ रहा है आपको? कलेक्टिवली एडिशन भी किया आपने सभी एटॉमिक नंबर का तो भी वही रिजल्ट आ रहा है आपको, या आपने प्रायोरिटी भी असाइन किया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर तो भी वही रिजल्ट आ रहा है आपको। समझ में आ रहा है आपको? यस सर यस। हाँ, तो डोंट डोंट कंफ्यूज विद दिस, है ना। और इसके साथ में क्या हो रहा है बोलो, जब हम सेकंड कार्बन को अटैच करेंगे तो OH गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी, करेक्ट? यस सेकंड सर, प्रायोरिटी किसको मिलेगा? BR को, जो ग्रुप है करेक्ट। हाँ नीचे वही, का। यहाँ पर भी इशू नहीं, क्योंकि वही है सेकंड एंड इज गेटिंग द थर्ड एंड गेटिंग द फोर्थ, तो यहाँ पर भी ऐसा, जब ऐसा जाएंगे हम ये इसका डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज है, इसको क्या लिखेंगे फिर हम? एस फॉर्म यस लिखेंगे, बराबर है। यस यस सर, सर। और यहाँ पर इसको 1 2 2 3 3 4, 4 तो इसको जब ऐसा जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या लिखेंगे फिर? R। है ना। आगे ये समझ में आपके? यस सर। यस सर, है ना। तो ये जो जो प्रीवियस मैं आपको क्वेश्चन दिया था, तो वो आप है ना ट्राई करो घर अच्छे से, और वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज SS RS SR एंड RR फॉर्म ऑफ 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज 2,3,4 ट्राइक्लोरोहेक्सेन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, either this compound is optically active or inactive? 2,3,4 ट्राइक्लोरोहेक्सेन सर एक्टिव है। कितने हैं इसमें स्टीरियो सेंटर है? हम्म, हेक्सेन मींस 6 कार्बन एटम, है ना। और कौन से पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे? 2 2 3 and 4। 4। यस, है एक्टिव ये कंपाउंड। Yes. यस सर। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम? 3. सर 2। 2 या 3 है, बोलो कोई एक। ये हाँ, 3 कार्बन एटम स्टेरिक सेंटर। 3 कार्बन एटम है ना, ऑन अ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, द 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। देखो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस इज आल्सो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, this is also not optically active compound because 3 groups are similar, but the carbon number second, carbon number third and carbon number fourth, the 4 different groups are attached, that's why this compound containing the 3 chiral carbon atom. The rule says that the number of the isomer is depending on 2 raised to n, so here the n is 3, so that's why how many isomers possible with this compound? 6. 8 सर। 8 सर। ग्रेट। हेलो, तो कितने हैं बोलो? 8 सर सर। 8। 8. 8 है। हाउ मेनी? 8। तो 8 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, है ना। तो देखो 8 स्ट्रक्चर कैसे है, तो यहाँ पर है ना, these are the 8 optical isomers of 2, 3, 4
ट्राइक्लोरोहेक्सेन। आया समझ में आपके कैसे ड्रॉ करना है? तो जस्ट change the position of a one by one carbon atom, you got the 8 stereoisomers of 2,3,4 trichlorohexane.